इसमें दिखाता नहीं है रिकॉर्डिंग स्टार्टेड और नॉट. चलो या ओके स्टार्ट. या आई जस्ट स्टार्टेड इट. या अरे यार ये क्या सिस्टम है. शेयर yeah, we were here what we were doing those type of containers and platform of course. Now ये मैं क्यों आपको दिखा रहा हूँ, sometime in the questions if you see the past questions, अभी तो नहीं, जब देखोगे sometime they ask you what is flat track, उसके sketches बनाइए. So ये question में आते हैं, इसलिए now if you have these I will be sending you these notes also. So just practice this इसके sketches कि flat track क्या होता है, open top container किस टाइप का होता है, tank container and rest you can write. आपके साथ इसकी wording भी है. So that's the idea of showing you that question में ही आए हुए past paper में there are questions that briefly describe or write short notes on, so you can easily understand and make. So ये तो थे हमारे type of containers. Now lashings I will come later on. So this is basically the lashing material, how it is kept on the ships. These are the rods, turnbuckles. So this we will see. This is again the lashing rods with which these containers are lashed. Now these are the base locks. Basically initially when you load container on hatch top, under deck there is no lashing. On deck when you come, so you put these base locks and then on top of it intermediately you put the what you call this automatic or semi-automatic twist locks. So these are the base locks. These are basically stackers, which I will explain when we come to the lashing part. So let's see कार्गो वर्क में कि कार्गो वर्क में व्हाट ऑल थिंग्स. हाँ, अब आपका जो क्वेश्चन था, यस व्हाट यू आर सेइंग अबाउट द कार्गो प्लान. अ ब्रीफ डिस्क्रिप्शन टू यू कि व्हाट इज योर कार्गो प्लान ऑन कंटेनर. नाउ कंटेनर ट्रेड इज सच दैट द शिपर कौन होता है, जिसने अपना कार्गो भेजना है, ट्रांसपोर्ट करना है. And consignee is the guy who receives the cargo, who is the receiver of the cargo. Shipper is the cargo who is sending the cargo, and consignee who is receiving the cargo. अब suppose you are running an industry लुधियाना में, आप वहाँ से every month or you know you want to send 10, 20, 50 containers. So इस तरह से सारे shipper जो हैं they keep on booking these containers through the booking agents कि भाई ओके मेरे को ये लॉस एंजलिस अपने कंटेनर भेजने हैं. So they know the ships, example from Bombay. So they say every week the ship will be touching Bombay. Every Monday there will be ship loading for LA. So इस तरह से आपका कार्गो जो है बुक होता जाएगा through these of course all the legal papers and all that. And finally जो बुकिंग एजेंट हैं वो एक आपके सेंट्रल प्लानर को इन्फॉर्म करते जाएंगे कि these are the containers, so many containers from this place, so many containers, पूरे कंटेनर्स का डिटेल. सेंट्रल प्लानर जो है, जो इस पर्टिकुलर सेक्टर पे काम कर रहा है बॉम्बे एलए पे, वो उसको पता है, द प्लानर ही एक्चुअली रन्स योर शिप. उसको पता है कौन सी पोर्ट्स कॉल करनी है, कहाँ बंकर देना है, कहाँ क्या चीज़ देनी है, सारी एवरीथिंग इज डन बाय दैट प्लानर. वो प्लानर क्या करेगा, उसके पास भी जैसा आपका लोडिकेटर उससे थोड़ा सा सोफिस्टिकेटेड कंप्यूटर है. सो ही कीप्स ऑन कलेक्टिंग ऑल दिस इंफॉर्मेशन अबाउट द कंटेनर डेटा एंड ही thus keeps on feeding. इधर उसके पास पूरी आपकी शिप की प्लान है. तो ही कीप्स ऑन पुटिंग दिस प्लान के अंदर कि हाँ ही कीप्स ऑन एडजस्टिंग फर्स्ट पोर्ट का कार्गो टॉप पे होना चाहिए, पोर्ट रोटेशन व्हाट वी कॉल. सो ही कीप्स एडजस्टिंग एंड 1 or 2 days before the ship arrives then he sends the plan to the ship. It's not possible for the ship's officer, chief officer कि लास्ट मिनट तक वो इन कार्गो को एडजस्ट करता रहे. सो कार्गो बुकिंग तो चल रही है. So these bookings are again done by shore people, and shore वाले जो हैं, जो प्लानर है वो सारा कार्गो को एडजस्ट करता है. he knows how many containers he can load, कहाँ पे कैसे, सब उसकी जो पोर्ट रोटेशन को देखते हुए, प्लस आपके शिप में बंकर कितना है, बैलास्ट कितना है, तो उसके पास ये इन्फॉर्मेशन रहती है.
Now 1 or 2 days before the ship arrives, then he sends and then the chief officer has to check. अब आपकी knowledge आ जाती है. Now you can check only when you know the things. Now what all factors as a officer, चाहे चीफ ऑफिसर ले लीजिए, इवन चाहे आप सेकंड ऑफिसर भी हो, तो कार्गो प्लानिंग तो सेम है. Now what all factors I will check when I am checking this cargo plan. मेरे पास आ गई है, उसने तो अपनी पोर्ट रोटेशन, उसने तो सारे कंटेनर ही ट्राई टू फिल अप द स्पेस, यार मैक्सिमम कार्गो जो है मैं लिफ्ट करूं. अब हमारे पास जो है टेक्निकल पॉइंट्स आ जाते हैं. आई हैव टू सी सो मेनी थिंग्स, ड्राफ्ट, स्ट्रेसेस, ऑल दीज थिंग्स वी हैव टू सी. सो ये अब हम फैक्टर देखेंगे, क्या क्या फैक्टर जो हैं आई हैव टू गो थ्रू बिफोर आई से ओके कि भाई दिस प्लान इज ओके. नाउ सुपरविजन के लिए तो मेरे को भी एक्सपर्ट होना पड़ेगा, देन ओनली आई कैन सुपरवाइज, इजंट इट? बाकी मेरे को नॉलेज ही नहीं है, देन हाउ कैन आई चेक दिस कार्गो प्लान? सो आई हैव टू सी ऑल दीज फैक्टर्स. व्हाट ऑल फैक्टर्स आई विल सी? कि यार पोर्ट रोटेशन इज वन ऑफ द फैक्टर्स की यस फर्स्ट पोर्ट कार्गो शुड बी ऑन टॉप, शिफ्टिंग कम होनी चाहिए. अगर कोई कार्गो, अगर फर्स्ट पोर्ट का कार्गो नीचे चला गया कंटेनर, देन वी हैव टू शिफ्ट, उसके एक्स्ट्रा पैसे होते. सो दीज ऑल थिंग्स वी विल सी, that what all things we have to see when we check up this container storage plan. So इसमें अगर आप basically देखिए तो first of all is the stress part or the draft. The first thing is the draft. You know, you have studied all the load lines, the ship should not be overloaded. So सबसे पहले तो हम draft restriction देखेंगे at berth, approaches, next port of call, कहाँ पे कितना draft available है, कितना draft मेरा ship का है. Sometimes the draft changes with the density, so कहीं exceed तो नहीं हो रहा. Chief officer has to put this plan, वो plan को लोडिकेटर में डालेंगे, and then he keeps on seeing all the things. That the first thing is the draft. Then comes again vessel passing through Panama, Suez, any restriction on the draft or trim, so we have to check that with the amount of cargo he has put. Then comes vessel trim. अब ये भी नहीं है कि उन्होंने लोडिंग कर दी और सपोज शी इज गॉट 2 मीटर ट्रिम, वो भी ठीक नहीं है. अगेन ट्रिम के साथ हमारा if you see this excessive trim होगी, लोडिंग डिस्चार्जिंग में प्रॉब्लम आएगी, बिकॉज गैंट्री ने तो सीधा कंटेनर लोड करना है. अगर नीचे आपका जहाज जो है इफ शी इज एक्सेसिवली ट्रिम्ड और लिस्टेड कंडीशन में है, देन व्हाट हैपन्स? कंटेनर विल नॉट फिट इन द सेल गाइड. या तो सेल गाइड को डैमेज करेगा, या वो कंटेनर डैमेज हो जाएगा. तो इसके लिए I have to see that all the time. That's why you see these people who have worked on container ships, we have this anti-heeling system and all that to keep bare minimum trim and keep all the time ship upright so that no damage to container or cell guide takes place. Visibility. Another important factor is the visibility from the bridge. तो ये भी हमने देखनी है. If trim ज़्यादा हुई तो visibility भी हमारी comply नहीं करेगी. What is the regulation for visibility? Anybody? Any idea? Visibility basically होती क्या? How much it is? Yeah, your audio not clear. How much? What is IMO visibility criteria? Sir, it should be 500 meter or the double of the ship's total length, whichever is the less. Yeah, 2 ships length or 500 meters, whichever is less. So I should be able to see. The idea visibility means I should be able to see forward of my ship, right from the forecastle से आगे जो है I should be able to see at least 500 meters or 2 ships length. So container ships में we are loading containers right on top. So उससे मेरी visibility में फर्क पड़ता है, तो वो भी comply होनी चाहिए. That also you check. Storage plan must be checked to confirm vessels heel at the end of cargo operation. कि जब मेरा कार्गो फुली लोड हो जाएगा, ये भी नहीं है कि 2 डिग्री लिस्ट हो जाए. Of course, now when you are taking full cargo, you cannot adjust with ballast also, isn't it? The full cargo लिया तो extra ballast भी नहीं कर सकते. So ये चीज़ें हमने we have to check this before the end of operations. What will be the draft, list, trim, everything the chief officer has to check. Try avoiding isolated stacks on containers. So ये भी हमने देखना है कि लोडिंग में आइसोलेटेड, ये तो नहीं कि एक 4 हाई 5 हाई जो है ओनली 1 स्टैक इज देयर ऑन द हैच टॉप, वो भी नहीं अच्छा. समटाइम शिप्स रोल एक्सेसिवली तो थोड़ी सी प्रॉब्लम आ सकती है. अवॉइड लोडिंग हाई क्यूब कंटेनर्स ऑन फर्स्ट एंड सेकंड टियर. अब हाई क्यूब क्या होते हैं? 9 फीट 6 इंचेस. अब मेरा जो लैशिंग मटेरियल है, लैशिंग रॉड्स हैं, वो बेसिकली 8 फीट 6 इंचेस के लिए है.
तो अगर मैंने फर्स्ट ईयर पे इमेजिन जस्ट ऑन द हैच कवर इफ आई एम लोडिंग एंड मैं फर्स्ट 2 टीयर्स को हाई क्यूब लोड कर देता हूँ. हाई क्यूब मीन्स जो कंटेनर की हाइट ज़्यादा है 9 फीट 6 इंचेस. इफ आई लोड दोज कंटेनर्स दैट मीन्स मेरी लैशिंग रॉड जो शॉर्ट पड़ जाएगी. सो फर्स्ट 2 टीयर को छोड़ के लेट इट बी लोडेड ऑन टॉप. हायर टीयर्स पे जाने दीजिए बिकॉज वहाँ पे लैशिंग रॉड तो लगानी नहीं. तो ये थोड़ी सी प्रिकॉशंस हैं कि हाई क्यूब जो हैं फर्स्ट 2 टीयर्स पे वी अवॉइड लोडिंग. पोर्ट रोटेशन अगेन कंटेनर्स टू बी प्लान इन सच अ मैनर दैट मिनिमम शिफ्टिंग इज रिक्वायर्ड कि फर्स्ट पोर्ट का कार्गो टॉप पे होना चाहिए, सेकंड का नेक्स्ट, थर्ड का नेक्स्ट. सो कंटेनर ट्रेड इज सच दैट ऑल द टाइम you should be able to even what we call the flexibility. Vessel should be able to load and discharge simultaneously. That we have seen the ships holds are never empty. 100 कंटेनर निकालेंगे 150 डाल देंगे. So ships are designed like that. ये भी होना चाहिए. ये नहीं है कि फर्स्ट अच्छा जी आपने एक ही होल्ड में पहले वहाँ से डिस्चार्जिंग होनी है फिर उसके अंदर लोडिंग होनी है. चलो एक होल्ड में हो सकता है दूसरे होल्ड में. सो वी कैन नॉट से कि फर्स्ट द शिप हैज़ टू डिस्चार्ज देन लोड. नो. तो ये प्लानिंग जो है सेंट्रल प्लानर्स डू इट इन दिस वे that we also see the ship doesn't stay for a long time. Type of containers, a special precaution we have to pay for the reefers, IMDG, OOG. OOG क्या होता है? Out of gauge. जैसे हम देख रहे थे, if I am loading something in that flat racks or if I am loading something in the open top कि जिसमें कार्गो जो है थोड़ा सा बाहर एक्सटेंड कर रहा है उसकी ड्यू टू डायमेंशंस. So those type of containers we have to see a special storage. that planner ने जो किया है has he kept the next slots empty or if the cargo is extending from above of the container so there should be nothing, this container should be on top. तो ये तो है नहीं कि cargo is extending out of container and उसके साथ में दूसरा कंटेनर लगा दिया then loading में प्रॉब्लम आ जाएगी. So ये जो containers हैं these are the basically we will pay extra attention. Reefers, IMDG, OOG. So IMDG of course when we do IMDG then we will see what all precautions are required for the IMDG cargo. A shearing force bending moment of course थोड़ा बहुत आपने भी कंस्ट्रक्शन में अभी पढ़ोगे स्टेबिलिटी में that there is something called shearing forces, bending moments, torsional moments. Now in ships पे container ships पे there is something extra what we call torsional moments. So when you load the cargo is simply आपके लोडिकेटर में सारी कैलकुलेशंस दी होती हैं. सब वेरी फास्ट कैलकुलेटर कि you just feed these containers or feed the plan. So it will tell you that how is the bending moments and shear forces. They should not exceed 100%, isn't it? So जो maximum limit है उससे exceed नहीं होना चाहिए. So इसमें additional torsional stresses are there. Torsional stresses are basically like a buckling effect. कि आपने आगे नंबर 2 होल्ड में तो पूरा पोर्ट साइड में लोड कर दिया एंड उसको कंपनसेट करने के लिए यू लोडेड नंबर 4 में स्टारबोर्ड साइड में. the ship will become upright but actually ship is getting buckled, isn't it? नंबर 2 में तो पोर्ट साइड में लोड है एंड नंबर 4 में स्टारबोर्ड साइड में लोड है. सो शिप्स आर बेसिकली डिजाइन. सो ये शिप्स है इनका तो ट्रेड ही ऐसा है. कंटेनर शिप्स आर डिजाइन कि आई कैन एम्प्टी द पोर्ट साइड ऑफ वन होल्ड, आई कैन keep the starboard side empty of another hold. The ships are designed. So इस चीज़ के लिए but there is a limit. हर चीज़ की लिमिट है. Everything has got all the stresses have got limit. So हमें इस केस में ये torsional stresses जो हैं वो भी थोड़ा ध्यान देना है that it is not exceeding the 100% limit. So information on this maximum allowable stresses basically is given in your ship's loading manual और लोडिकेटर में भी फीड होता है. So chief officer will check that the stresses are not exceeding the permissible limits which is normally 100%. So he keeps about 85-90%. उससे ज़्यादा स्ट्रेस नहीं होना चाहिए किसी भी पार्ट ऑफ द शिप. सो एज यू ग्रो अप व्हेन यू कम फॉर द चीफ ऑफिसर्स कोर्स जैसे जैसे आप देखोगे सो यू विल आल्सो सी दिस स्टेबिलिटी बुकलेट में क्या दिया होता है, लोडिंग मैनुअल में क्या है. सो द बिल्डर हु मेक्स द शिप ही गिव्स ऑल द डेटा कि यार ये प्लेट कितनी स्ट्रांग है, कितना स्ट्रेस ले सकती है, कितना. सो आवर जॉब इज that when we put this into the lubricator we see that no frame nowhere the ship is actually excessively stressed. That is the basic idea of this shearing force, bending moment and all that. तो ये तो हो गया shearing force. चलो shear bending ये तो अलग चीज़ है. stack weights. Now important comes stack weight. Now what is stack weight and stack weight distribution? सबसे पहले तो मेरे को stack weight पता होना चाहिए. Normally this is the term we use on the container ships. Stack weight is nothing, it is simple like
load density, isn't it? Of other ships, I think, are you aware what is load density? Anybody can tell me what is load density? सर मैक्सिमम डेंसिटी जिसका आप कार्गो लोड कर सकते हो टैंक में. Yes, so maximum, like any part of the ship has got a what we call the structural limitation, isn't it? कोई भी है, कोई भी पार्ट ले लीजिए, चाहे आप अपने घर की छत भी ले लीजिए, so there is a limit कि उसके ऊपर हम कितना लोड डाल सकते हैं, isn't it? Similarly on the ship also, on the tank top, on the hatch covers, on the main deck of any ship, there is a limit. Why? कि उसको पता है इसने कितने thick steel plate लगाई है, how much load this plate can take. Similarly on the container ships also, now container ships, if you see, when we are loading containers, so container is resting only on 4 points, it is not resting all along the length. अगर आपने कभी ऑब्जर्व किया हो, इवन किनारा में भी कंटेनर्स होते हैं, तो बेसिकली दे रेस्ट ओनली ऑन द 4 points डाउन बिलो. सो जितना उसका लोड है, सपोज 20 टन कंटेनर है, सो दिस इज एक्चुअली कमिंग ऑन द 4 points, तो उसके कॉर्नर फिटिंग्स हैं. जो अभी हमने देखा था, व्हाट वी हैव सीन दिस कॉर्नर पोस्ट, कॉर्नर पोस्ट जो है वही नीचे कॉर्नर फिटिंग्स हैं, उसी के ऊपर कंटेनर रेस्ट करता है, और नीचे का बीम जो है वो डेक से ऊपर होता है. So that means the entire weight is going to come on these 4 points. So अब इन 4 points को जब हम लोड करते हैं, एक कंटेनर के ऊपर दूसरा कंटेनर लोड करेंगे, so basically what we call the point load. So इस point load को डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए, अभी हमने शुरू में if you remember डनेज पढ़ी थी. What is the use of डनेज? Use it even for weight distribution. अब आपके ये जो कंटेनर शिप्स हैं, दे आर डिजाइन, जहाँ उन्होंने ये कंटेनर लोड होना है, एग्जाम्पल इन योर हैच कवर्स and the holes के अंदर लोड होना है, where the cell guides are there. So there also if you see this underneath this, जहाँ कंटेनर ने लोड होना है सेल गाइड में, उसके underneath means in their DB tanks there are all these stiffening members, thick beam girders are running, जो एक्चुअली इस वेट को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, ताकि वो 4 पॉइंट्स पे ना आए, वो पूरी की पूरी प्लेट पे डिस्ट्रीब्यूट हो जाए. सो स्टैक वेट इज बेसिकली, अगर आप देखिए कंटेनर्स को हम लोड कर रहे हैं, तो कंटेनर्स आर लोडेड बेसिकली इन सीरियल वाइज, एक के ऊपर एक, एक के ऊपर एक. सो ये जो पूरी एक टियर बनता है, दिस इज कॉल्ड अ स्टैक. एग्जांपल, आई एम लोडिंग इन द होल्ड या हैच कवर के ऊपर लोड कर रहा हूँ. सो आई एम लोडिंग वन कंटेनर, अनदर ऑन टॉप, अनदर ऑन टॉप, अनदर ऑन टॉप, व्हाट वी कॉल द टियर्स. सो ये जो वन टियर है, इसे हम कहते हैं स्टैक. अब इस पूरे के पूरे स्टैक के नीचे जो डेक है या आपका टैंक टॉप है, उस पे कितना वेट आ रहा है, दैट इज कॉल्ड द स्टैक वेट. सो स्टैक वेट इज अ मैक्सिमम वेट दैट कैन बी borne बाय डेक, हैच कवर्स और टैंक टॉप एट द कॉर्नर्स ऑफ अ बॉटम स्लॉट नियर द सेल गाइड. अब इसके साथ दूसरी चीज भी है. अभी हमने CSC प्लेट पढ़ी है, उसमें उसने लिखा है अलाउएबल स्टैकिंग वेट. व्हाट इज अलाउएबल स्टैकिंग वेट? क्या मैंने एक कंटेनर लोड किया, उसके ऊपर आई एम लोडिंग सेकेंड कंटेनर, उसके ऊपर आई एम लोडिंग थर्ड कंटेनर. हाउ मेनी कंटेनर्स, ये जो बॉटम वाला कंटेनर है अपने ऊपर कितने कंटेनर का वेट ले सकता है बिफोर उसकी जो कॉर्नर पोस्ट हैं और एनी डैमेज टेक्स प्लेस. ये तो है नहीं कि हम उसके ऊपर कंटेनर लोड करते जाएं, देयर मस्ट बी सम लिमिट. सो ये जो लिमिट है कि एक कंटेनर अपने ऊपर हाउ मच वेट इट कैन टेक, दैट इज कॉल्ड द अलाउएबल स्टैकिंग वेट. तो एक तो हो गया स्टैक वेट, एक हो गया आपका अलाउएबल स्टैकिंग वेट. सो अलाउएबल स्टैकिंग वेट इज बेसिकली represents the maximum superimposed load that any container can be subjected to and is often referred to as a stacking capability. and इसकी information कहाँ से मिलेगी हमें? from the CSC plate. उसके ऊपर उसने जैसे if you have seen in the morning CSC में उसने लिखा allowable stacking weight 192,000 kilograms. that means 192 टन्स का वेट हो अपने ऊपर ये कंटेनर बियर कर सकता है. तो उसको हम डिवाइड कर देते हैं, मे बी 30 टन के कंटेनर इफ आई एम लोडिंग, सो मे बी 7 कंटेनर्स और 6 कंटेनर्स. सो वी कॉल इट दिस इज अ 6 स्टैक लोडिंग. दिस कंटेनर इज कैपेबल ऑफ 7 स्टैक लोडिंग. ये अपने ऊपर हो 30 टन के 6 कंटेनर ले सकता है या 7 कंटेनर ले सकता है. तो ये दो चीज़ें जो हैं बहुत इंपॉर्टेंट है समझने के लिए. व्हाट इज स्टैक वेट? स्टैक वेट इज बेसिकली द लोड which your ship can take, which your maximum weight that can be borne by deck or hatch covers or tank top. And whereas the allowable stacking weight is
representing the maximum superimposed load that any container can be subjected to and is often referred to as the stacking capability. So अगर आपको ये क्वेश्चन आता है, वेरी कॉमन इट इज ऑल्सो राइट शॉर्ट नोट्स ऑन स्टैक वेट, तो आपने दोनों चीजें लिख देनी. स्टैक वेट इज दिस maximum load which is permitted for the hatch covers, tank top or deck, and allowable stacking weight, how much a container can take or maximum superimposed load that container can be subjected to. तो ये चीज़ आपकी क्लियर होनी चाहिए, स्टैक वेट एंड स्टैकिंग वेट्स. सो ये तो हो गया. चलो स्टैकिंग वेट क्या है, स्टैक वेट्स क्या होते हैं, ये भी मैं चेक करूँगा. तो सबसे पहले चीफ ऑफिसर्स क्या करते हैं, जैसे ही लोडिंग प्लान आएगी, सो यू पुट इट इन द लोडिकेटर. एंड देन ईच कंटेनर का जो स्टैक है, ईच होल्ड के अंदर दे चेक इन केस इफ इट इज एक्सीडिंग. वैसे तो लोडिकेटर ऑटोमेटिकली या तो उसको रेड कर देगा या कोई वार्निंग दे देगा कि समवेयर द स्टैक वेट इज एक्सीडिंग. एग्जांपल, अगर आपका स्टैक वेट ऑन वन टैंक टॉप इज से 210, अब मैंने जो है 7 कंटेनर जो हैं 30 टन के आई कैन लो, बट इन बिटवीन इफ द प्लानर पुट सम कंटेनर ऑफ 35 टन, तो वो 210 से एक्सीड कर जाएगा. द मोमेंट इट इज शोइंग 212, तो लोडिकेटर आपको वार्निंग दे देगा, दे भी सकता है नहीं भी दे सकता. सो दैट इज फिजिकली, नॉट फिजिकली, बेसिकली द चीफ ऑफिसर चेक्स यार इस हर स्टैक के नीचे उसका जो लोड है एक्सीड तो नहीं कर रहा. सो दैट इज द वन वेरी बेसिक थिंग दैट वी चेक एज द स्टैक वेट इज नॉट एक्सीडिंग. एक्सीड कर रहा है तो क्या करेंगे, देन चीफ ऑफिसर हैज टू एडवाइज द प्लानर कि भैया ये कंटेनर चेंज कीजिए, इसको इंस्टेड ऑफ हैवी की बजाय पुट दिस, चेंज वन ऑफ द कंटेनर्स एंड पुट अ लाइटर कंटेनर. व्हाई, बिकॉज इट इज एक्सीडिंग द स्टैक वेट. वैसे तो प्लानर के पास भी इंफॉर्मेशन हो सकती है, बट दे आर लेस बॉदर्ड बिकॉज दे नो लेट द शिप चेक वट एवर दे हैव टू चेक. तो आप उसको इन्फॉर्म करोगे वापस कि भी यहाँ पे जो जो कमियाँ आपको प्लान में दिखेंगी. सो समरी बेसिकली what all things we are going to see is the drafts, trim, load line zones also need to be checked, port rotation, cargo to be planned as per the port rotation to avoid restow of containers which accounts for additional cost, stresses of the ship to be taken into account, and then stack weight is the weight that can be safely loaded on deck, hatch cover or tank top, and stack weight should not be exceeded at any time. So अगर आपको कोई पूछे, these are the basically the few factors which are basically checked while making the stowage plan. Loading condition not to exceed intact stability criteria set in the loading manual, that is a trim, stability, GM आपने सब पढ़ा है. तो वो सारी की सारी चीज़ें आपको चीफ ऑफिसर को चेक करनी है before he says okay for the loading. IMO visibility criteria to be complied with, GM to be accounted and should be optimized for the voyage. IMDG criteria regarding stowage. अब आप IMDG जब हम पढ़ेंगे, we will see in detail कि यार which container कहाँ पे मैं कौन सी क्लास का कंटेनर कितनी दूर रखना है हमें. Can I load one on top of another? Can I have to keep another one container space? So वो criteria भी हमें चेक करना है. So dangerous container should not be loaded on the outward rows or on the higher tiers to deal with emergency. IMDG to be loaded as per the DOC. DOC होता है डॉक्यूमेंट ऑफ कंप्लायंस की शिप कौन सी क्लासेस शिप को ऑथराइज्ड है, अलाउड है टू लोड. तो ये भी चेक करना है. reefer socket allocation, accessibility to monitor reefer to be considered, size of containers, type of containers. तो ये सारी चीजें we will check before a loading plan is approved. Of course I am not making, but it's like making of a plan. Containers डाल दिए, if everything is okay then we say all right, and then he sends the plan to the terminal. Example, your ship is arriving Bombay, then he will send the plan. Bombay की जो plan है, जो Bombay में loading होनी है, well before, at least 2-3 days before he'll send to the terminal, because उनको भी container arrange करने हैं. ये तो है नहीं कि ship comes alongside and you have seen on the terminal so many containers are there. So जो आपने container load करने हो सकते हो कहीं नीचे हो, तो उसको उठा के बाय विद योर व्हाटएवर फोकलिफ्ट और जो आपका जो भी वहाँ पे मशीन्स काम कर रही हैं फॉर शिफ्टिंग द कंटेनर्स. सो जो टर्मिनल प्लानर है, ही आल्सो हैज़ टू प्लान. यू आर लोडिंग 500, 800 कंटेनर्स, 1000, 2000 कंटेनर्स. सो ऑल दोज कंटेनर्स आर टू बी
laid out on the jetty जहाँ पे आपके ship ने berth करना है. So when the ship comes, then the terminal planner comes again on the ship. He discusses with the chief officer, everything is okay, no changes, and then he gives his plan कि this is the way I am going to load. कितनी एंट्रीज काम करेंगी, फर्स्ट कहाँ पे लोड होगा, फिर कहाँ पे, कैसे डिस्चार्जिंग. सो चीफ ऑफिसर हैज अ टोटल प्लान विद हिम एंड देन ही एडवाइजेज यू, ही गिव्स यू द प्लान कि दिस इज द वे वी आर गोइंग टू लोड. सो दिस इज बेसिकली योर कंटेनर लोडिंग एंड डिस्चार्ज. फिर एज अ ड्यूटी ऑफिसर यू कीप मॉनिटरिंग कि भाई जैसे जो प्लान बनी है, कंटेनर्स आर लोडेड अकॉर्डिंग टू द स्टोरेज प्लान, कहीं और तो नहीं जा रहे. एंड उसके लिए हम रीफर्स IMDG जब हम इसको थोड़ा और पढ़ेंगे एंड वी विल सी कि हमने उसके लिए क्या क्या स्पेशल अटेंशन पे करनी है एज अ ड्यूटी ऑफिसर. सो दैट इज़ मोर इम्पॉर्टेंट कि ये जो स्पेशल कंटेनर्स हैं उसके लिए एज अ ड्यूटी ऑफिसर आई विल पे. एनी डाउट यू हैव चीफ ऑफिसर, यू हैव द प्लान विद यू, यू हैव द लिस्ट ऑफ रिफर्स, यू हैव द लिस्ट ऑफ IMDG. सो आपने अपनी वॉच में उसको मॉनिटर करना है दैट एवरीथिंग इज गोइंग एज पर दिस. फिर आपका बैलास्ट भी आ जाता है. लैशिंग, availability of lashing material to be considered. Now as a duty officer, अब कंटेनर्स वालों को तो पता है, they have been running around up and down, बट जिन्होंने कंटेनर्स नहीं किए तो नथिंग डिफिकल्ट इन इट. कि अब लैशिंग मटेरियल जो है नॉर्मली वैसे तो अरेंज होता है, क्रू अरेंजेस अकॉर्डिंग टू द बेस. हर होल्ड के पास नंबर 1 होल्ड, नंबर 2, नंबर 3, जो बेस है उसके पास जितना मटेरियल चाहिए होता है वी स्टैक अप देयर. जैसे आपने देखा हो लैशिंग रॉड्स वगैरह जो हैं वो उसी बे के पास है, बिकॉज जो लैशिंग वाले बंदे हैं वो लैशिंग मटेरियल एक जगह से उठा के दूसरी जगह नहीं ले जाएंगे, क्रू को देना पड़ता है, वहीं पे सारा कुछ रखना पड़ता है. बैलास्ट सीक्वेंस टू बी डिटरमिन्ड, कार्गो टू बी प्लान. नॉर्मली चीफ ऑफिसर्स डू द बैलास्टिंग, डी बैलास्टिंग, बट आई थिंक एज अ कैडेट आप अभी एक्सपर्ट हो गए, सो यू आर द इंचार्ज, इजंट इट? मोस्ट ऑफ यू आर डूइंग द बैलास्टिंग, डी बैलास्टिंग. तो आजकल उसकी भी लॉट ऑफ रूल रेगुलेशंस आर देयर. पोर्ट में नहीं करना, पहले ही बैलास्टिंग कर लो या पहले ही डी बैलास्टिंग कर लो, पोर्ट में नॉट अलाउड. बैलास्ट ट्रीटमेंट प्लांट, अनदर हेडेक. नहीं, क्या कहते हो? एनीबडी वाज डूइंग एनी प्रॉब्लम यू आर फेसिंग विद द बैलास्ट ट्रीटमेंट प्लांट? कंटेनर्स पे जिन्होंने किया होगा. एनीबडी, एनी प्रॉब्लम यू फेस्ड? ट्रिप हो रहा होगा, बार बार ट्रिप हो जाता है, नहीं? यस सर, पावर ट्रिप होता है. यस सर, पावर ट्रिप होगा, ब्लास्ट वाटर ट्रीटमेंट. आराम आएगा, फिर उसको कर नहीं सकते, फिर उसको लॉट ऑफ थिंग्स आर देयर दैट यू डू. सो आप बैलास्टिंग, डी बैलास्टिंग जो इट इज़ बिकमिंग डे बाय डे वेरी टफ जॉब. सो पहले तो था कि कहीं पे भी कुछ भी कहीं से भी बैलास्ट ले सकते हो, कहीं पे भी आप बैलास्ट डिस्चार्ज कर सकते हो, बट नाउ डेज सो दिस बैलास्ट लोडिंग सीक्वेंस जो है दैट इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट. प्लस second thing is I have to as a duty officer see that list and trim, that ship is not excessively trimmed and ship is not excessively listed. 1.5 degrees okay. उसके लिए हमारे पास एंटी हीरिंग सिस्टम होता है, वो भी हम देखेंगे. नाउ कम्स द डेक स्टोरेज. चलो प्लानिंग तो हमने कर ली, प्लान बन गई, अब आपकी स्टोरेज आ गई. सो कंटेनर डेक्स एंड रीइंफोर्स्ड पॉन्टून हैच टॉप्स टू टेक डेक लोड कैपेसिटी आर जनरली कंस्ट्रक्टेड विद, उनकी इनफ स्ट्रेंथ है. आज आपके हैच कवर जो हैं 30-35 टन ईच इज वेइंग, इजंट इट? सो इनके ऊपर आप आराम से कर सकते हैं. सो फर्स्ट ईयर इज द फाउंडेशन फॉर द सेकंड एंड सब्सिक्वेंट ईयर्स. सो दिस इज हाउ बेसिकली, अगर आप देखिए दिस हैच कवर्स, ये आपके सॉकेट्स रहते हैं, दीज आर वेल्डेड ऑन द हैच कवर्स. इसके बीच में आप यू विल पुट दैट बेस लॉक, दैट इज जस्ट अ मैनुअल वन. सो यू पुट दिस एंड देन फाइनली कंटेनर, एक कोन कंटेनर में जाएगा, एक कोन इसका नीचे, एंड यू टर्न द रॉड, फिर वो लॉक हो जाएगा कंटेनर. सो कंटेनर कैन नॉट स्लाइड, कहीं पे भी नहीं जा सकता, ना ही वो ऊपर उठ सकता है, यू आर जस्ट लॉक्ड इट. एंड उसके बाद इंटरमीडिएट जो कंटेनर्स हैं उनको हम ट्विस्ट लॉक से लोड करते हैं. तो जनरल प्रिकॉशंस फॉर डेक स्टोरेज, डेक कंटेनर शुड बी स्टोर्ड सिक्योर्ड, generally stored in fore and aft direction. They should be stored in such a position not to deny safe access. Of course cellular ships में ये problem नहीं है, because there is a passage, people can very easily go forward and aft. They should be effectively secured and unit should be stored in a manner that it does not extend over ship side. ये भी नहीं है, because the plan, the ships are designed
कि कंटेनर शुड नॉट एक्सटेंड आउटसाइड द शिप. Many containers stored part on the hatch top and part on the extended pedestal supports. So जो आपके डेक के कंटेनर हैं वो आधा कंटेनर हैच के ऊपर होता है, हैच कवर पे, आधा आपका पेडेस्टल के ऊपर. And deck containers on second tier and above should be secured with semi-automatic या automatic twist locks. तो intermediate जो twist डालते हैं हम, that is called the twist locks. Deck loads not to overstress the deck area, and no restraint system should cause excessive stress on the container, means lashing. तो ये हम lashing जब देखेंगे कि कितनी lashing टाइट करनी है. आज तक तो था कि people go with a small rod and they keep on tightening the turnbuckle without realizing कितना टाइट होना चाहिए. isn't it? कभी ध्यान दिया आपने कितना टाइट होना चाहिए? कि जितना कर सकते हैं, जिसमें जितनी जाना उतना कर दो उसको. ऐसे करते थे. ओके, सो देयर इज अ लिमिट. हाँ, तो आपको उतना ही टाइट करना है जितना जस्ट, इट शुड बी जस्ट टाइट इनफ, नॉट ओवर स्ट्रेसिंग. ओवर स्ट्रेसिंग से कई बार आप कंटेनर डैमेज हो सकता है या हैच कवर डैमेज हो सकता है. एज इट इज उसके ऊपर इतना लोड है, फिर और हम टाइट करेंगे तो वी आर पुटिंग एक्स्ट्रा लोड. सो कंटेनर सिक्योरिंग बेसिकली जो है, इट इज एज पर CSM. तो मोस्ट ऑफ द शिप्स टुडे अदर देन लिक्विड बल्क कार्गोस और दूसरे जो हैं उनमें under 16 chapter 6 and 7 we require a cargo securing manual CSM for all type of ships engaged in carriage of cargoes other than solid and liquid bulk cargoes. Bulk carrier and tankers के लिए नहीं है, but other ships के लिए cargo securing manual is compulsory. इसके अंदर they give you all the guidelines, all the requirements, कैसे lashing लेनी है, lashing plan especially for container ships. आपकी पूरी lashing plans are given in the कार्गो सिक्योरिंग मैनुअल जो हमने शुरू में पढ़ा था. कौन सा लैशिंग मटेरियल, उसकी स्पेसिफिकेशंस, एवरीथिंग, टोटल नंबर ऑफ, क्वांटिटी ऑफ द लैशिंग मटेरियल ऑन डेक, अंडर डेक एंड पोर्टेबल एंड फिक्स्ड, सारा पूरा डिटेल आपका सिक्योरिंग मैनुअल में दिया होता है. चीफ ऑफिसर उसके अकॉर्डिंगली वी आस्क फॉर द कंपनी की इतना सप्लाई चाहिए एंड सो मच, हाउ मच क्वांटिटी यू शुड हैव. आपने भी इन्वेंट्री ली होगी, बैक ब्रेकिंग जॉब. 10,000 TU शिप itself is a big one. आजकल तो 20,000 वाले हैं. तो यू कैन इमेजिन ट्विस्ट लॉक्स को गिनना कितना मुश्किल होता हो. तो ये तो आपकी आप बेसिकली द सिक्योरिंग. तो CSM उसके अकॉर्डिंगली मैं करूँगा. ना सिक्योरिंग अंडर डेक, अंडर डेक में कुछ नहीं होता. वर्चुअली ऑल कंटेनर शिप्स प्रोवाइड विद सेल गाइड्स. क्योंकि हमने देखा है सेल गाइड्स में द कंटेनर जस्ट स्लाइड इन बिटवीन, आपको कुछ नहीं लगाना. जस्ट वन कंटेनर ऑन टॉप ऑफ another, on top another, on top another. So 40 feet की सेल गाइड है, उसमें 40 feet containers, just keep on loading, nothing is required because वो जो सेल गाइड्स हैं which are just the thick angles welded on the ship structure, so they don't let the containers move anywhere. So they are fixed by cell guide itself in the hold, and the greatest stress the containers are exposed to stems from the stack pressure. कि कंटेनर्स के ऊपर जो लोड आएगा वो बेसिकली स्टैक का आएगा, अपने कितने कंटेनर आपने उसके ऊपर लोड किए हुए. सो सिंस कंटेनर्स नॉट कनेक्टेड टुगेदर वर्टिकली, लेटरल स्ट्रेस इज ट्रांसमिटेड बाय इंडिविजुअल कंटेनर्स. तो सेल गाइड का ये भी फायदा है कि इंडिविजुअल कंटेनर जो है वो अपना अपना लोड ही सेल गाइड पे डालता है, एक साथ सारे कंटेनर उसके ऊपर लोड नहीं डालते. बाई चांस एक कंटेनर अगर नीचे वाला डैमेज भी होता है, नथिंग विल हैपन टू द टॉप कंटेनर्स. ज़्यादा से ज़्यादा थोड़ा सा बेंड होगा, कुछ होगा. सो दिस इज द एडवांटेज ऑफ योर सेल गाइड्स आल्सो. ना सिक्योरिंग अंडर डेक, ऑफ कोर्स प्रॉब्लम कब आएगी, जब हम 40 फीट सेल गाइड में 20 फीट कंटेनर को लोड करना है. तब उसके लिए एक लेवलिंग पैड या स्टैकर्स कहते हैं, दैट वी पुट, उससे चारों के चारों कॉर्नर पे वी पुट दिस लेवलिंग पैड, एंड देन next container we put on top of this. Otherwise 40 feet के ऊपर 45 nothing is required. Cell guide 40 feet की है, then no problem, nothing is to be put in that. So this is how basically your under deck loading looks like. कि आपने 20 feet containers हैं and cell guide 40 feet की है. तो यहाँ पे आप ये stackers डाल दोगे, इससे containers आपस में connected रहते हैं, nothing happens. सिक्योरिंग ऑन डेक यूजिंग, डेक पे थोड़ी सी, अंदर तो कुछ नहीं हमें करना.
सो डेक पे जो आपकी सिक्योरिंग है दैट इज लिटिल, आई विल शो यू द पिक्चर्स की हाउ द ऑन डेक। नाउ ऑन डेक आपका बेसिकली सिक्योरिंग इज लाइक दिस कि हमने ये पहला टीयर लोड किया, दिस इज योर हैच कवर, दिस इज द मेन डेक। सो ये कंटेनर यहाँ आधा यहाँ रेस्ट करेगा, आधा ये पेडेस्टल पे रेस्ट करेगा। एंड देन बेस में हमने बेस लॉक्स डाल दिए, वो उसको लॉक कर देंगे। एंड ये इंटरमीडिएटली बीच में हम ट्विस्ट लॉक डालते हैं, ऑटोमेटिक या सेमी ऑटोमेटिक ट्विस्ट लॉक्स, ये सारे कंटेनर्स के बीच में रहेंगे, which are connecting all the containers in this. Now this whole thing is known as the stack. अब ये पूरा का पूरा स्टैक जो है इस एरिया में कितना लोड डाल रहा है, दैट इज कॉल्ड द स्टैक वेट। तो दिस में भी 20 टन्स और 30 टन्स, 1 2 3 4, सो 20 टन मीन 80 टन का लोड आपके इस एरिया में आ रहा है। सो दी शिप्स आर कैलकुलेटेड एंड गिवन टू यू कि भाई इस एरिया में आप 100 टन से ज़्यादा नहीं डाल सकते, एग्जाम्पल। सो आई पुट ओनली से 80 टन, आई एम हैप्पी। 100 से ज़्यादा इसके ऊपर नहीं आना चाहिए, व्हाट इज गिवन इन योर लोडिंग मैनुअल। सो इसको सेम आप लोड कर लीजिए, देन वी कम द लैशिंग रॉड्स। सो यू पुट दिस सिंगल क्रॉस, डबल क्रॉस एज पर द लैशिंग प्लान इन द CSM कंटेनर सिक्योरिंग प्लान में उन्होंने सारी कैलकुलेशन करके आपको दी होती है कहाँ सिंगल क्रॉस लगाना है, कहाँ डबल क्रॉस लगाना है, एंड दीज आर कॉल्ड द विंडो लैशिंग्स। ये थर्ड टीयर जो है, अब आपके कंटेनर दिस इज सिक्योर्ड एंड थर्ड का बॉटम जो है इस लैशिंग रॉड ने पकड़ ली। नाउ दिस इज द लेटेस्ट व्हाट वी हैव द ब्रिज लैशिंग। नाउ ब्रिज लैशिंग कैसे दिखती है, लाइक दिस, कि पहले तो हम नीचे सिक्योर कर रहे थे, अब उन्होंने यही जो क्रॉस डेक है इसको थोड़ा रेज कर दिया। सो यू कैन गो अप, इस लैडर से चढ़ के आप यहाँ जा सकते हैं। एंड नाउ द कंटेनर्स आर सिक्योर्ड विद दिस ब्रिज विच इज़ अ फिक्स स्ट्रक्चर। तो अब मैं कह रहा हूँ इंस्टेड ऑफ सिक्योरिंग ये बॉटम वाला, आई स्टार्ट सिक्योरिंग विद सेकंड और थर्ड। सो 3-4 कंटेनर जो हैं आपने लैशिंग रॉड से सिक्योर कर लिए ऊपर। तो आपके 3 और 4 कंटेनर्स और मे बी 2 और 3 कंटेनर्स दे आर ऑन ट्विस्ट लॉक्स। तो यहाँ पे इनके बीच में आपके ट्विस्ट लॉक्स आ जाते हैं एंड लैशिंग रॉड जो है ये पकड़ लेंगी। एंड लास्ट वाली जो है विंड लैशिंग, इन कंटेनर्स पे वी पुट द विंड लैशिंग। सो दिस इज व्हाट वी कॉल द ब्रिज। सो इसके ऊपर नाउ यू आर टेकिंग लैशिंग, आपकी डेक जो है वो नीचे है, उन्होंने इसको रेज कर दिया। नाउ दे आर ट्राइंग टू रेज दिस मोर, मे बी 1 मोर, कि आप और ऊपर वाले कंटेनर हैं उनको भी सिक्योर कर सकते। ये आपका 40 फीटर 45 फीट, ये 40 फीट है, ये 45 फीट, सो इट इज़ एक्सटेंडिंग आउट। तो इसका भी लोडिंग का यही सिस्टम है। सो एज अ ड्यूटी ऑफिसर यू हैव टू केयरफुल। एक तो ये डेंजरस, दीज रॉड्स आर वेरी हैवी, यू हैव टू स्टे अवे व्हेन दीज गाइज आर टेकिंग लैशिंग। तो जब आप उन्होंने लैशिंग ले ली, देन यू जस्ट हैव टू गो एंड चेक दैट कि हाँ भी लैशिंग रॉड लगाई है एंड वो सफिशिएंट टाइट है, दैट्स ऑल यू हैव टू सुपरवाइज। बट बी वेरी केयरफुल, स्टे अवे फ्रॉम दिस। तो ट्विस्ट लॉक्स तो हो गए, देन सिक्योरिंग भी हो गई। नाउ प्रिकॉशन चेक्स ड्यूरिंग डिस्चार्ज एंड लोडिंग। तो अब हमने एज अ ड्यूटी ऑफिसर मेरी क्या जॉब बनती है, इसको लोडिंग एंड डिस्चार्जिंग के टाइम में करने का। रेगुलरली एग्जामिन लैशिंग कंपोनेंट लुकिंग फॉर एनी वियर एंड टियर, डैमेज और डिस्टॉर्शन। अब ये आपकी एज अ ड्यूटी ऑफिसर की जिस लैशिंग मटेरियल को यूज़ कर रहे हैं वो ठीक भी है, कहीं रॉड बेंड तो नहीं है, कोई ट्विस्ट लॉक टूटा हुआ तो नहीं लगा रहे, या कोई टर्न बकल जो है वो भी बेंड हो सकता है। तो इसके लिए आपके पास जितने भी 1 आधा 2.5 बंदे जो भी हैं, तो यू हैव टू अरेंज। यू मस्ट हैव सीन, यू मस्ट हैव केप्ट वॉचेस विद सेकंड ऑफिसर, थर्ड ऑफिसर, उन्होंने आपको भेजा होगा ये चेक करो, ये चेक करो। अब आप जो है आप रिस्पॉन्सिबल ऑफिसर बन गए। नाउ यू आर गोइंग टू मेक श्योर कि यार सब काम बारी बारी से कोई ना कोई करता रहे। यू कांट डू एवरीथिंग अलोन। Carefully check twist locks that stevedores return to the ship. Locks might be of the some other ship. कई बार ऐसा भी हो जाता। अब ये तो है नहीं कि पोर्ट में एक ही शिप है, आप ही हो, उसी बर्थ के पीछे आगे भी जहाज होते हैं, वो भी कंटेनर शिप्स होंगे। कई बार मटेरियल भी एक्सचेंज हो जाता है, फिर प्रॉब्लम आ जाएगी। कई बार ये जो गियर बॉक्सेज हैं किनारा में ही रह जाते हैं, याद ही नहीं रहता, शिप सेल आउट हो जाता। तो ये सब आपका ड्यूटी ऑफिसर ये responsibility है। You have to see that everything is secured, taken back on the ship, these gearboxes, and then you tell the sir everything is okay.
एग्जामिन डी रिंग्स, आई पैड्स, जहाँ पे मैंने लैशिंग लेनी है वो पॉइंट भी चेक करना है, ये नहीं खाली लैशिंग रॉड उसको ही चेक करना है। बट अगर आप जो आई नीचे है वही सड़गी हुई है, तो व्हाट इज द यूज ऑफ टाइटनिंग द लैशिंग? and observe application of lashings and ensure they are correctly applied and locked. So ये आपको nothing difficult on the ship, nothing is, एक वॉयज करोगे आप सब समझ जाओ। तो only for the examination point of view, टैंकर बॉयज जिन्होंने नहीं कंटेनर शिप्स किए उनके लिए थोड़ा सा ये आप इसको पढ़ लोगे, यू विल अंडरस्टैंड। शिप पे इवन यू आर डन ऑन टैंकर, यू गो टू कंटेनर शिप, वन वॉयज इज मोर देन सफिशिएंट, आई थिंक 1 वीक इज मोर देन सफिशिएंट। कोई ऐसी हाईटेक वहाँ पे नहीं है जो आपको समझ नहीं आएगी। हाँ, कंटेनर शिप वाले को टैंकर पे आने के लिए थोड़ी सी प्रॉब्लम आएगी, बिकॉज ही मे टेक लॉन्गर टाइम, दैट्स वाई दे आर नॉट पुटिंग, दे आर पुटिंग ओनली सेम शिप्स। Keep a watchful eye on container loading, ensure it is as per the stowage plan. Incorrect container stowage plan can have, of course, implications. तो मैंने यही देखना है, I am loading as per the stowage plan. अब देखिए कई बार ये ट्विस्ट लॉक जो है प्रॉपरली बैठा नहीं है। Now this is properly sitting. एंड ये देखिए ये ट्विस्ट लॉक के जो कोन है उसी के ऊपर कंटेनर इज नॉट प्रॉपरली लोडेड। तो प्लीज मेक श्योर दैट इट इज़ वेरी डिफिकल्ट, नीचे खड़े होकर तो ऊपर दिखेगा भी नहीं, दिखता ही नहीं है। आजकल शिप्स आर लोडिंग 7-8 हाई, तो कभी आप ब्रिज पे जाओगे तभी आपको दिखेगा ओहो कंटेनर इज नॉट प्रॉपरली सिटिंग। बट एनीवे, ट्राई वट एवर मैक्सिमम यू कैन डू दैट दीज कंटेनर्स आर प्रॉपरली सिटिंग। तो ये तो हो गई आपकी लोडिंग, सिक्योरिंग। देन आफ्टर सेलिंग व्हाट चेक्स वी डू एट सी, वो भी कंटेनर वालों को तो पता है। अदरवाइज नॉर्मली ऑल एनी शिप, इट इज नॉट ओनली कंटेनर शिप, that within 24 hours of departure examine, check and tighten the lashings. चाहे वो टिम्बर है, चाहे वो कंटेनर है, चाहे जनरल कार्गो है, तो नॉर्मली वी चेक द लैशिंग्स एवरी डे। ये तो है नहीं कि एक बार कर दिया और उसके बाद अराइवल में चेक करेंगे, रास्ते में लैशिंग स्लैप हुई, टूट गई, हु इज गोइंग टू चेक दैट? सो बेसिकली दिस इज अ रूटीन, एवरी मॉर्निंग 1 hour ऑल द क्रू गोज, दे चेक, जहाँ पे स्लैप हुई है वहाँ पे टाइटन कर देते। Check all the twist locks in lock position. Subsequently perform lashing check every day. Tighten the turnbuckles. And before onset of bad weather, we must. Chief officer भी आपको बोल देगा. He may also take a rounds, come on deck and see that there is going to be a bad weather. So all the lashings are properly taken. And in case required, if you can, take some extra lashing also. If necessary, additional lashing equipment not in use, correctly stored in lashing bins or racks. तो ये भी एक एज अ, चलो ड्यूटी ऑफिसर तो आप नहीं इतना करते, बट व्हेन यू बिकम चीफ ऑफिसर सो ही हैज़ टू एंश्योर कि ये लैशिंग मटेरियल की इन्वेंट्री ठीक है, प्रॉपरली रखा है। ये नहीं है कि लोड करने आए लैशिंग मटेरियल ख़त्म हो गई, मेरे साथ भी हुआ होगा। तो इसके लिए इसकी इन्वेंट्री बहुत ज़रूरी है, बट इट इज़ अ टफ जॉब। टेक इन्वेंट्री ऑफ लैशिंग, ऑर्डर स्पेयर्स whenever you need. So ये आपकी few pictures हैं, so I will send you, you can go through, इनकी terminology क्या है। So these are basically the lashing eyes जो welded होती हैं। This is another dovetail foundation, basically इसमें different type का base lock लगता है। तो ये आजकल ये नहीं यूज़ होते, this is olden type और general cargo ships पे होते थे। Now this is a cone basically which is welded on the tank top, जहाँ पे कंटेनर जाके रेस्ट करता है, सेल गाइड के नीचे भी होगा। एंड जहाँ पे हमने 20 फीट या 40 फीट सेल गाइड में 20 फीट लोड करना है वहाँ पे भी हो सकता है, सो दैट कंटेनर्स डू नॉट मूव। एंड ये गाइड प्लेट है, बेसिकली दिस गाइड प्लेट इज वेल्डेड जहाँ पे आपने 20 फीट कंटेनर्स लोड करने हैं 40 फीट वे में। तो ये गाइड प्लेट जो है उन दोनों कंटेनर को रोक देगी, कहीं जाने नहीं देगी। रेस्ट इज लैशिंग रॉड्स, पेंगुइन हुक, and this is your stackers, and these are your twist locks, automatic or semi automatic, and this is basically your what we call that mid lock, yeah this is mid lock। तो ये सारे आपके इक्विपमेंट जो है, दिस इज द लैशिंग इक्विपमेंट विच इज यूज्ड ऑन कंटेनर शिप्स। तो कई बार क्वेश्चन आ जाता है व्हाट ऑल इक्विपमेंट इज यूज्ड ऑन द कंटेनर शिप्स फॉर लैशिंग। सो इसकी आप स्केचेस बना सकते हो, लैशिंग रॉड, टर्न बकल, इसकी स्केच बनाना नॉट डिफिकल्ट हुआ, इजंट इट। ट्विस्ट लॉक को भी थोड़ा सा दिखा सकते हो आप, कोन्स को भी आप दिखा सकते हो।
So this is again your all your loose fittings, what we call the portable lashing material, और एक होता है fixed lashing material. These are your lashing eyes. देखो how nicely it is painted. अब यही अगर पेंट नहीं है, सड़ गई, पुराना होगा जहाज तो ये सड़ गई तो यही टूट जाएगी. So this is what chief officer, duty officer. So we take care. So this is how these lashings are taken on these ships. But you got to be very, very careful. This is your cross track. इसे कहते हैं cross track, and all this you see double cross. This is called the double cross. एक इस कंटेनर के, एक उसके ऊपर वाले का, बॉटम ऑफ द सेकेंड टियर, उसको पकड़ा. उसके ऊपर के कंटेनर हिलेंगे नहीं, बिकॉज नीचे वाले को ही हमने अच्छी तरह से लैश कर दिया. बट यहाँ पे रेलिंग होने चाहिए. नॉर्मली इट इज नाउ मैंडेटरी दैट यू शुड हैव द रेलिंग, बिकॉज ये हैच कवर अगर खोल दिया, हाउ डेंजरस इट बिकम्स टू वर्क हियर. You can just fall in the hatch cover. चलो आज के लिए इतना ही, ठीक है. So whatever little bit is remaining we'll cover up in the next session. आपकी next week, इस week तो नहीं है, next week. Yeah. सर इनके नोट्स भेज देंगे आज ही. भेज दूंगा बच्चे, चलिए भेज दूंगा, पढ़ लेना. या that is also good. थोड़ा पढ़ लेना, कुछ समझ नहीं आता तो पूछ लेना. I'll send you today. ओके. चलो, so far any questions from anybody? तो हमारा ये भी थोड़ा सा कंटिन्यू रहेगा नेक्स्ट वीक. और हम वो कर रहे थे विंड एंड विंड ट्रायंगल. नेक्स्ट वीक व्हेन भी मिलेंगे, सो मेट्रोलॉजी में वी विल कंटिन्यू विद दैट विंड. आई शो यू द ब्यूफोर्ट स्केल वाली जो इमेजेस हम देख रहे थे, उसकी एक्सप्लेनेशन. एंड विंड ट्रायंगल वी विल स्टार्ट. तो विंड ट्रायंगल के लिए आपने कीप योर ज्योमेट्री बॉक्स विद यू, जस्ट बिकॉज वी हैव टू do that graphically scale wise. ठीक है. 1 nautical mile is 1 centimeter, and आपकी जो प्रोटेक्टर या D होती है for making the angles. So when we do this wind triangle next week, continue with these containers. कंटेनर खत्म हो जाएंगे, then probably we will take the थोड़ा numerical शुरू करेंगे स्टोरेज के. ओके चलो, ओके डियर, बाय बाय देन. Yeah. Thank you, sir. थैंक यू सर. Thank you, sir. Thank you, sir. Welcome.